Good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. Today we are going to start with our chapter number 6, that is life process. First of all, what is life and what do we mean by process? In short, if I say, there are only two broad categories which we can divide everything around us, that is into living and non-living. And living things require some of the processes to go on. Otherwise, if the process is not going on, then they will be considered as non-living because they are dead. So let us find out which are that. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing a cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? If they are sleeping, there is no movement, right? Shall we consider them as dead? No. We would still think that they are alive. But how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about the plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will see. But what about the plants that have leaves of different colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either will growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visible growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. Movement over very small scale will be invisible to the naked eyes. Movements of molecules, for example. If this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. And that is partly why there is controversy about whether they are truly alive or not. Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues have cells have smaller compartments in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breathing down over time. In order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance process in living organisms? Let us explore. अभी देखो, कोई भी चीज़ हमारे आजू बाजू में है, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, हमें कैसा पता चलेगा? कि उनके अंदर कोई मूवमेंट होगी, राइट? डॉग भाग रहा होगा, इंसान बोल रहा होगा. तो कभी कभी डॉग या इंसान अगर सो गया आराम से गहरी नींद में, तो क्या हम उसको बोलेंगे ये मर गया? नहीं. क्यों? क्योंकि मूवमेंट तो आ नहीं रही है, बट स्टिल हम उसको ज़िंदा बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो माइन्यूट
मूवमेंट दिखती है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये मूवमेंट कर रहा है तो ये लिविंग है। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट तो मूवमेंट नहीं दिखाते, सांस लेते हैं तब, तो क्या प्लांट को हम डेड कहेंगे? नहीं ना। तो प्लांट जिंदा है हमें कैसे पता चलता है? कि उनके ऊपर ग्रीन कलर के लीव्स आते रहते हैं नए नए। तो फिर ऐसे कुछ प्लांट्स है जिसके ऊपर ग्रीन कलर के लीव्स नहीं आते, दूसरे कलर के आते, तो हम कैसे पता चलेगा कि प्लांट की साइज़ बढ़ती है थोड़े टाइम देखोगे तो, है ना, तब हम जिंदा बोलेंगे उसको। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी फिर ग्रोथ नहीं होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे ही रह जाते हैं, तब कैसे बोलेंगे कि ये ज़िंदा है? तो प्लांट के अंदर भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट, पानी भी चाहिए। तो पानी में न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं और वो रूट में से ऊपर लेते हैं, राइट, और प्लांट ज़िंदा रहता है। जिस रूट में से पानी ऊपर नहीं चढ़ता वो प्लांट डेड हो जाता है। तो वो प्लांट कैसे कहलाएगा? अलाइव, कि उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। उसी तरह हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कुछ भी हमारी बॉडी के ऊपर लग जाता है, कभी स्क्रैच हो जाता है, तो 2-3 दिन बाद देखेंगे तो वो जहाँ से खून निकल रहा था वो ऑटोमेटिक सील हो जाएगी जगह, खून निकलना बंद हो जाएगा और ब्राउन कलर की स्किन आ जाएगी, और वो भी थोड़े थोड़े दिन बाद गायब हो जाएगी और स्किन पैसे नॉर्मल थी पहले वैसे ही हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा घाव कहाँ लगा था हमें। राइट। सो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिजम्स या मूवमेंट क्या होती है हमारे बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम जिंदा कहलाते हैं। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular। अभी देखो मैं चुपचाप आंख बंद करके ऐसे बैठ जाऊं तो मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस और रिपेयर का काम चालू ही रहता है, राइट। Even when we are just sitting in the class, even if we are just asleep, जब हम लोग सो जाते हैं तब हम कुछ नहीं काम करते होते रात में, है ना। तो ये भगवान ने हमको ऐसी सिस्टम क्यों बनाई है? कभी विचार आता है कि कभी हमको नींद ही ना आती तो सोचो, जागते ही रहते हम लोग, तो कभी हमारे घर पे चोरी नहीं होती, पहली बात तो ये, राइट। अच्छा, जब हम लोग सो जाते हैं तो होता क्या है कि पूरे दिन भर हमने जो भी काम किया हो, थिंकिंग सोच से भी हम लोग थक जाते हैं, सोच सोच के, है ना। तो ब्रेन के सेल्स जो होते हैं ना वो भी कुछ डेड हो जाते हैं, तो नए सेल्स बनाने के लिए हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है। हमारा कंट्रोल ज़ीरो हो जाएगा बॉडी के ऊपर और वो रिपेयरिंग काम चालू हो जाएगा, राइट। Since these maintenance process are needed to prevent the damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organisms. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we call food. तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिपेयरिंग काम चल रहा है ना, समझ लो आपके घर में कुछ काम चल रहा है रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग का काम कब तक चलता रहेगा? जब तक उसको जो रिपेयर कर रहा है उसको सीमेंट मिट्टी ने वो सब मिलता रहेगा। सीमेंट ख़त्म हो गई तो वो बैठ जाएगा हाथ पे हाथ डाल के, क्यों? क्योंकि सीमेंट नहीं है, रिपेयर नहीं हो सकता मकान। सीमेंट ले आओ, मिक्स करके मैं कर दूँगा। उसी तरह हमारी बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी हम बाहर से लेते हैं, किसके फॉर्म में लेते हैं? फूड के फॉर्म में लेते हैं, है ना। A process we commonly call nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process. अभी देखो हम जो खाना खाते हैं, राइट, उसके अंदर ग्लूकोज होता है,
कोई भी खाना खाओगे ना, जो चीज़ आपको मीठी लगती है, रोटी भी चबा के खाओगे तो आपको मीठी लगती है। तो रोटी मीठी लगने का कारण उसके अंदर ग्लूकोज है थोड़ा बहुत। ग्लूकोज यानी कि C6, कार्बन के 6 एटम C6H12O6। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ ग्लूकोज जो है उसके अंदर 6 कार्बन है ना। तो वो हमको एनर्जी देता है। लेकिन जब हम कोई काम करके सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो वो हमको नुकसान करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए तो हम बाहर फेंक देते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन है तो वो हमको फ़ायदा पहुंचाता है। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्बन है तो वो हमको फ़ायदा करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन है, वो हमको नुकसान पहुंचाता है, तो इसको हम बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा क्यों? सो depending on the complexity of this carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process। अभी देखें, हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेकार है तो हम बाहर फेंक देते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए यूज़फुल है ना, तो वो आराम से ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोसेस, the outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under control of individual organism. These sources of energy therefore needed to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen source from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of the food sources for cellular needs is what we called respiration। अभी देखो, आपके पास महंगे से महंगी गाड़ी है, टायर में हवा भी है, आपको गाड़ी चलानी भी आती है, आपके पास चाबी भी है, राइट। लेकिन आपके गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल नहीं है तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, आपने पेट्रोल डीजल भी डाल दिया, अब चलेगी? आप चलाना भी जानते हो, आप बैठ जाओ अंदर गाड़ी में, चाबी भी है आपके पास, पेट्रोल भी डाल दिया, अब गाड़ी चलेगी? अभी भी नहीं चलेगी। कब चलेगी? जब हम चाबी घुमाते हैं तो इंजन स्टार्ट होता है ना। जब इंजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जितना पेट्रोल है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, राइट। अब आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो अब आपकी गाड़ी चल सकती है ना। तो क्या हुआ कि कार्बन, उसमें भी कार्बन होता है, पेट्रोल जलेगा अंदर, है ना। जब आप चाबी घुमाते हो तो क्या होता है, अंदर आग लगती है इंजन के अंदर और पेट्रोल जलता है। पेट्रोल जलता है तो झटका लगता है, तो इंजन को धक्का देता है और इंजन आगे बढ़ता है। और इंजन के साथ जुड़े होते हैं व्हील, तो व्हील गोल गोल घूमने लगते हैं। तो जब तक उसको पेट्रोल मिलता रहेगा वो व्हील घूमते रहेंगे और गाड़ी आगे जाती जाएगी। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म होने वाला होगा तो गाड़ी ऐसे करके रुक जाएगी, है ना, डच्चे खा के। तो ये तो हुई गाड़ी को चलाने के लिए, उसको पेट्रोल की ज़रूरत है। जब खाना हम खाते हैं, खाना पेट में चला जाता है तो फिर हमको एनर्जी कैसे मिलती है? हम लोग थोड़ी ना पेट में आग लगाने जाते हैं। हाँ, जब हम सांस लेते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। खाना जब हम सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब हम लोग सांस लेंगे अच्छे से
खाना अच्छे से ब्रेक डाउन होगा, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, और फिर डाइजेशन शुरू हो जाएगा। In the case of a single cell organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organization. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of the specialized tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all the parts of the body carrying food and oxygen. This situation creates a need for the transportation system for the carrying food and oxygen from one place to another in the body. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could be even harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. Again, if the basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, specialized tissues for excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport waste away from the cells to these excretory tissues. Let us consider this various process so essential to maintain life one by one. अभी जैसे हम बात करते हैं यूनिसेल्यूलर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, तो उसके भी लाइफ प्रोसेस होंगे, उसको भी खाने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। वो भी ग्रोथ करेगा, वो भी खाना खाने के बाद एनर्जी निकालने के बाद वेस्ट बाहर फेंकेगा, फिर अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं, उसमें भी ये सारे प्रोसेस होते हैं, राइट। तो वो जो खाना खाते हैं, राइट, बाकी का वेस्ट जो होता है वो सिंपल, वो पूरा एक ही सेल, एक ही बॉडी है, वो कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। तो उनका लाइफ प्रोसेस क्या है, सिंपल होता है, गैस को एब्जॉर्ब करना और बाहर बॉडी में से निकाल देना। जैसे हम लोग कैसे पसीना निकाल देते हैं, जब हम खेल के आते हैं तो गर्मी बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में से पसीना निकलने लगता है, अंडरस्टूड। तो जब पसीना निकलता है तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाता है। उसी तरह सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनकी बॉडी में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रोसेस से वो डिफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। अभी हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर, जाने के एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं जो बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे देखो, हमारी बॉडी में देखने का काम, सुनने का काम, सूंघने का काम, बोलने का काम, राइट, फिर फील करने का, ये सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अपना अपना प्रोसेस करते हैं, राइट। अब जब ये अपना प्रोसेस करते हैं तो उन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एनर्जी उनके पास पहुंचती है ऑक्सीजन के थ्रू। अभी देखो, पूरी बॉडी में कहीं पर भी काटो तो क्या निकलता है, कहीं पर भी काटो, यहाँ पर सिर्फ ब्लेड मारो या चाकू मारो तो खून निकलेगा, यहाँ मारो तो भी निकलेगा, इवन नाखून के वहाँ मारो तो भी निकलेगा, पैर में मारो तो भी निकलेगा। इसका मतलब पूरी बॉडी में खून घूमता ही रहता है ना। तो कौन है जो बॉडी में खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है? फिर जैसे ही गंदा हो जाएगा तो वापस हार्ट में जाएगा, वहाँ साफ़ होगा, राइट। फिर वहाँ से फिर पूरी बॉडी में जाएगा, फिर गंदा हो के हार्ट में जाएगा। तो पूरा ये घुमाने का प्रोसेस जो है
वो कौन करता है बॉडी में, राइट। तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर जब हम खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत तो वहाँ पर भी पड़ती है, तो जो ऑक्सीजन ब्लड घुमाने का काम करता है, फिर वही ऑक्सीजन खाना खा लेते हैं तो उसको डाइजेशन का काम करेगा। और खाते खाते कुछ सोच रहे हैं तो ऑक्सीजन सोचने में भी ज़रूरत पड़ेगी ब्रेन में, राइट। तो इतनी सारी जगह जब ऑक्सीजन जाएगा ट्रांसपोर्ट होके तो कम पड़ जाएगा। पेट नहीं बोलेगा नहीं नहीं अभी मैंने खाना खाया, मेरे को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, पहले मेरे को ऑक्सीजन दे दो, बाकी सबको मत दो। तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। तो ब्लड बोलेगा मैं घूमूँ कैसे, ऑक्सीजन तो स्टमक ने ले लिया। ब्रेन बोलेगा मैं सोचूँ कैसे, ऑक्सीजन तो ब्रेन ने ले लिया, राइट। तो ये सारे अच्छा, और खाना जो डाइजेस्ट हो गया तो उसमें से सारा हमको काम नहीं आता है, कुछ वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट खाना जो होता है हमारी बॉडी का, उसको बाहर निकालना भी पड़ता है हमें बॉडी में से। वो काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसके सेल बोलेंगे जब तक हमारे पास ऑक्सीजन एनर्जी नहीं आएगी तो हम वो कचरा हमारे अंदर कैसे ले लेंगे, राइट। तो सारे काम अटक जाएंगे। तो एक ही ऑक्सीजन है जो पूरी बॉडी में सारे फंक्शंस में काम करवाता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता रहता है, दिमाग को सोचने में काम करता है, फूड को डाइजेस्ट होने में काम करता है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में काम लगता है, राइट। सो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो एक साथ ही चलते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि अच्छा तू ये काम कर रहा है तो मैं बैठ जाता हूँ, बाद में मैं करूँगा तब तू बैठ जाना, नहीं। ऑल द फंक्शंस आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, एक के साथ दूसरा काम चालू ही रहता है ना। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यूस रखने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी हमको मिलती है बाहर से जब हम खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। उसमें से फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, राइट। When we walk or ride a bicycle, we are using up the energy. Even if we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in order body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials in the body is the food we eat. तो चाहे मैं कुछ साइकिल चला रहा हूँ या रनिंग कर रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, तो कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो एनर्जी मेरे को मिलेगी कहाँ से, मैं जो खाना खाऊंगा उसमें से। अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, खाली ऐसे ही बैठा हूँ, तब भी मेरे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी एनर्जी की। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, तो लिविंग बींग्स को उनका खाना मिलता कैसे है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। इंसान को भी एनर्जी की ज़रूरत है, प्लांट्स को भी, कीड़े मकोड़ों को भी, और हाथी जैसे बड़े जानवर को भी, सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी उनको मिलती है फूड से, जो हम खाना खाते हैं। बट हम सबका फूड इनटेक जो है वो डिफरेंट है। जैसे मैं घास नहीं खा सकता हूँ, गाय घास खा सकती है। गाय घास खा के क्या बनाएगी, दूध। वो दूध मैं पी सकता हूँ, वो मेरे को एनर्जी देगा। तो मैं क्यों ये ना सोचूं कि भाई एनर्जी के लिए मुझे गाय को क्यों पालना, डायरेक्टली घास में से दूध क्यों ना निकाल लूँ, तो मेरे को गाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। गाय भी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, प्लांट्स के ऊपर। प्लांट किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, सनलाइट के ऊपर, राइट। तो ये सारा हम एक दूसरे का, कोई कार्निवरस है, कोई ओमनिवरस है, कोई हर्बीवरस है, लेकिन सब डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। प्लांट डिपेंड होता है सन के ऊपर एनर्जी के फॉर्म में, राइट। Some organisms use a simple food material obtained from the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. अभी देखो, खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी है, तो क्या मैं खा सकूँगा, भले घास नहीं है, प्लांट में से बने हुए हैं ना पेपर्स, मैं वो पेपर नहीं खा सकता। लेकिन गाय जो है वो पेपर भी खा लेती है, फिर भी उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर गाय प्लास्टिक खाती है तो गाय प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं कर सकती, है ना।
The organisms, the autotrophs include the green plants and some bacteria. अभी ऑटोट्रॉप्स यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, जो खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद के ऊपर खुद खाना बना लेते हैं। अभी आपके जैसे मम्मी कहीं बाहर गई है तो घर में सब कुछ होगा, लेकिन आपको बनाना नहीं आता है कैसे बनाते हैं खाना, तो आप भूखे रह जाओगे, है ना। लेकिन खाना बनाना आता है तो आप हो गए आत्मनिर्भर, मम्मी के ऊपर डिपेंड नहीं, आप खुद खाना बना सकते हो। अच्छा, खाना बना सकते हो, लेकिन खाना आया कहाँ से? मार्केट से। तो मार्केट से कौन लाया? पापा, पैसे दे के। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो खाना आएगा कैसे, भले आपको बनाने आता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं कि आप पैसे से खाना खरीद के भी ला सकते हो, तो आप पापा के ऊपर भी डिपेंड नहीं है खाने के लिए, है ना। सो जब एवरीवन इज़ सेल्फ सस्टेनिंग, हर कोई जब इतना सक्षम हो जाता है कि खुद पैसे कमा सकता है, खाना बाज़ार से ले आ सकता है, खुद खाना पका सकता है, देन इट इज़ नोन एज आत्मनिर्भर। सब इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इन रियल लाइफ वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। खाना जो है वो प्लांट में उगेगा, हम पैसे देंगे, प्लांट को पैसे देंगे, प्लांट उगाएगा या नहीं। तो प्लांट को जाके बोलो ये लो 100 रुपये मेरे को गेहूँ दो, तो प्लांट देगा? बोलता है नहीं देना है, तो आप क्या करोगे, है ना। सो हम खाना खरीद सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं, उगा नहीं सकते हैं। तो एक प्लांट ही ऐसा है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है सिवाय सनलाइट, अर्थ, वाटर और उसके ऊपर, है ना। जब प्लांट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो खुद अपना खाना बना सकते हैं। फिर वो प्लांट का खाना जो है हम इंसान खाते हैं और हर्बीवरस जानवर खाते हैं। फिर वो हर्बीवरस जानवर को कार्निवरस एनिमल खाता है, तो वो भी ज़िंदा रह सकता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्निवरस भी किसके ऊपर डिपेंड हुआ? प्लांट के ऊपर, लेकिन वो डायरेक्टली प्लांट नहीं खा सकता। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones, one before they can be used for the upkeep and the growth of the body. अभी जैसे मेरे को पता है दूध पीने से मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और दूध तो बनता है घास से, गाय घास खाती है, बकरी खाती है, तब हमको दूध देती है। तो मैं डायरेक्टली घास नहीं खा सकता हूँ, राइट। तो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो मेरी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। अदर ऑर्गेनिजम्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। दस द हेटेरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंकी। अभी बात आती है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो खुद अपना खाना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ऐसा एंजाइम होता है जो वो ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल वाले घास को भी डाइजेस्ट कर सकता है। कार्बन एंड एनर्जी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स जो है एक ही है, प्लांट्स है ना, और कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, बट मोस्टली प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना काम चलाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेयर में से लाइट ले लेते हैं, राइट। फिर बाहर से जो अंदर लाइट ली उन्होंने, फिर उसको वो जनरेट करेंगे खाना, और वो खाने के अंदर होगा क्या? कार्बन। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch.
which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अभी देखो, प्लांट जो है उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बाहर से लेते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। फिर क्लोरोफिल की मदद से वो इन 3 चीज़ों को मिला के बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। अभी जो कार्बोहाइड्रेट बन गया उसमें से कुछ वो लोग यूज़ कर लेंगे, उनको भी भूख लगती है, उनका भी पेट होता है, तो कुछ उन लोगों ने यूज़ कर लिया कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन जितना बनाया तो वो सब यूज़ नहीं हो जाता है, कुछ स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। फिर वो जो रिजर्व्ड फूड होता है वो हम ले लेते हैं खाना खाने में। तो जो खाना हमने खाया वो सारे का सारा खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ ही एनर्जी हमारे में हो जाती है और बाकी जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव रहता है, राइट। तो एक इक्वेशन है 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, See, 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give 6C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ही बन जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब देखो, ग्लूकोज आप मार्केट में लेने जाओ तो कितने रुपए किलो मिलता है, राइट। उसका प्रोसेस आता है बनाने का, लेकिन प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी जो होता है उसकी मदद से बना लेते हैं, राइट, दिस ग्लूकोज। सो let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. photosynthesis process में actually होता क्या है? The following events occur during the process. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Absorption of light energy by chlorophyll. प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बाहर की लाइट को पहले तो एब्जॉर्ब करता है, राइट। फिर दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट जो एब्जॉर्ब किया उसको केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लाइट इनटू केमिकल। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो है H2O उसको स्प्लिट कर देगा, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तीसरा, थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसने कार्बन लिया था, उस कार्बन को वो रिडक्शन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि लाइट फ्रॉम द एनर्जी, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल सब्सटेंस एंड वाटर,
फिर वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा, H2O को अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसके अंदर एटमॉस्फेयर में से लिया था, उसको वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the daytime। अभी ऐसा नहीं कि ये सारे प्रोसेस एक के बाद दूसरे कंटिन्यूस चालू रहते हैं, नहीं। जैसे जो प्लांट डेजर्ट में होता है वो क्या करता है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट जैसे खाना कैसे है, कच्चा होता है और एक पक्का होता है, उसके बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं, ना तो कच्चा बोल सकते हैं इसको, ना पक्का बोल सकते हैं, है ना। दो इंटरमीडिएट स्टेज बनाएगा, एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे टाइम। Let us see how each of the component of the above reactions are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, जो आपकी बुक में 6.1 डायग्राम है, अगर किसी लीफ को आप क्रॉस सेक्शन उसको काट के लीफ को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या होगा, you will notice that some cells contain green dots। तो जो लीफ का आपने पार्ट देखा ना, उसमें कोई पार्ट ही आपको ग्रीन कलर का डॉट वाला दिखेगा। दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। जो ग्रीन डॉट्स आप तो दिखते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है, और जिसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, राइट। Now let us do an activity which will demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। अभी एक एक्टिविटी हमें करनी है जो ये बताएगा कि क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है तो कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है, फिर वो फूड नहीं बनेगा कार्बोहाइड्रेट, तो हम क्या खाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोरोफिल। तो कैसे है वो देखते हैं। टेक ए पॉटेड प्लांट विथ द वेरिएगेट लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। दो लीव्स लेने हैं हमको, किसके, मनी प्लांट के या फिर क्रोटॉन्स के। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up। अभी देखो लीफ के अंदर स्टार्च होता है, प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टार्च को लेता रहता है, राइट। अब जब आप उसको एक बंद कमरे में रख दोगे तो प्लांट को जितनी एनर्जी चाहिए वो सारी स्टोर्ड एनर्जी जो थी वो सारा का सारा स्टार्च तो ज़िंदा रहने के लिए ले लिया, फिर ख़त्म हो गया। फिर क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई समुंदर में डाल देता है अंदर, तो आप सांस कैसे ले पाओगे। आप सांस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अंदर कूद सकते हो समुंदर में, है ना। कब तक रह सकोगे, जब तक कि बॉटल का सारा ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो जाता। जैसे ही वो ख़त्म होने को होगा आपको बाहर आना पड़ेगा सांस लेने के लिए, राइट। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up। तो अगर 3 दिनों तक अगर किसी भी प्लांट को अगर डार्क रूम में रखोगे तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी जो थी वो सारी वो स्टार्च उसने यूज़ कर लिया। Now keep the plant in sunlight for about 6 hours। अब उसको वापस सनलाइट में रखो 6 घंटे के लिए। Pluck a leaf from a plant, फिर उसमें से एक लीफ निकाल लो। And mark the green areas in it and trace them on the sheet of paper। जैसे ही आप उस लीफ को लोगे, राइट, सनलाइट में रखोगे 6 घंटे के लिए तो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स दिखने लगेंगे उसके ऊपर आपको। डिप द लीफ इन ए बॉइल्ड वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो उसी लीफ को एक गर्म बॉइलिंग वाला पानी होता है उसके अंदर डुबा दो। After this, immerse it in a beaker containing alcohol
फिर एक ग्लास लो जिसके अंदर अल्कोहल हो, वो गर्म पानी में से निकाल के उसको फिर डालो अल्कोहल वाले ग्लास में। केयरफुली प्लेस द अबाव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। अभी उसको वाटर बाथ देनी है, मतलब दूसरा एक वेसल लो जिसके अंदर पानी रखो और उसमें वो ग्लास रखो जिसके अंदर अल्कोहल है और उसके अंदर जो लीफ है। अब जैसे ही वो गर्मी लगने लगेगी तो अल्कोहल जो है वो उड़ जाएगा, राइट, गर्म होके। केयरफुली प्लेस द अबाव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for few minutes. अभी जैसे ही आप उसको निकालोगे लीफ को तो उसका कलर चेंज हो गया। अभी उस लीफ को अल्कोहल में से निकाल के आपको किस में डालना है? आयोडीन सॉल्यूशन में, राइट। For few minutes take out the leaf and rinse off the iodine solution. जब आप उसको बाहर निकाल के आयोडीन सॉल्यूशन से साफ कर लो। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of stars in various areas of the leaf? तो आपको क्या पता चला इसमें अलग अलग एरिया में जब आप देखोगे लीफ के? How plant obtains carbon dioxide? We have talked about the stomata. लीफ के अंदर एक स्टोमेटा होता है, राइट, एक सेल होता है जिसका नाम होता है स्टोमेटा, जो आपकी डायग्राम में 6.3 है बुक में डायग्राम में। Which are tiny pores present on the surface of the leaf. पोर्स यानी कि होल, छेद, वो छेद के फॉर्म में लीफ के ऊपर होते हैं। Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Massive, बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, ऑक्सीजन बाहर फेंकना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन बाहर फेंकना। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो इन गार्ड सेल से होता है, स्टोमेटा से होता है। But it is important to note here that the exchange of gases occurs across the surface of the stem, roots and leaves as well as. Since large amount of water can also be lost through this stomata, जैसे हम लोग बॉडी में से पसीना कैसे बाहर निकलता है, उसी तरह लीफ में से भी पानी बाहर आता है in the form of stomata. स्टोमेटा में से आएगा। द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। जब प्लांट खाना बनाएगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी तो वो गार्ड सेल्स खुल जाएगा, फिर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, राइट, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो पोर्स बंद हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देता है प्लांट। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड यानी कि जो दरवाजे पे होता है ना, दरवाज़ा खोलता है बंद करता है, उसी तरह लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होते हैं जो लीफ की जगह जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो खोलते हैं और बंद करते हैं, खोलते हैं बंद कर देते हैं। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब गार्ड सेल के अंदर पानी आता है वो स्वेल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, राइट, कोजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो स्टोमेटा वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर्स क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है तो वो पोर छेद भी बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के अंदर जो छेद होते हैं, जो छेद के फॉर्म में होते हैं लीफ के अंदर, वो खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते और बंद होते हैं, किसकी मदद से? गार्ड सेल की। और गार्ड सेल कब खोल बंद करता है? जब उसके अंदर पानी भर जाएगा तो वो फूल जाएगा तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब वो सिकुड़ जाएगा, पानी उसमें नहीं रहेगा, तो जैसे उसकी जगह कम हो जाएगी तो छेद खुल जाएगा अपने आप, राइट। देन whatever is their succeeding part based on the two activities performed,
We can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. तो photosynthesis के लिए sunlight essential है. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement. तो जो ऑटोट्रॉप्स प्लांट है वो अपनी एनर्जी कैसे डिपेंड रहते हैं अपनी एनर्जी के लिए, वो हमने देखा. बट दे मे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. ऐसा नहीं है सिर्फ उसी से उनका काम चल जाए, उनको और भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है वो नीचे ज़मीन में से लेता है. Other materials like nitrogen, phosphorus and magnesium are taken up from the soil. अभी जो मिट्टी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है. वो सारा जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो वो पानी में अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट. और जब वो प्लांट रूट से पानी ऊपर पहुंचाता है तो ये सारे मटेरियल्स भी ऊपर पहुंच जाते हैं. So nitrogen is essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. This is taken up in the form of inorganic nitrates and nitrites. तो ये कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को in the form of nitrate या nitrite, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen. अभी हमने देखा ऑटोट्रॉपिक, ये खुद खाना बना सकते हैं प्लांट उसका. अभी हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक, वो हम कल देखेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.